हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले हम लोग देखें कि मॉर्फोलॉजी मीन्स होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉर्फोलॉजी। तो लेट अस सी अ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स और कैरेक्टर्स। External features of characters, we can touch it, we can measure it, we can identify it, whether it is the flower of the marigold, flower of the rose. It can be easily recognizable, easily identifiable. तो जिसको हम टच करके, जिसको हम मेजर करके, उसकी लेंथ मेजर करके, उसके डिफ्रेंशिएट करके एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर, फिजिकल कैरेक्टर के आधार पर देखा जाता है, स्टडी किया जाता है। तो उस ब्रांच को बायोलॉजी का हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आज हम लोग रूट के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ रूट, structure of root root is the important part of the plants. Without root, uh, we can't imagine of the plants. But some cases some plants which doesn't have the roots, without roots they can also survive that, but root performs the very vital roles in different functions. So let us see what is the root and structures and shapes and functions there. So how to first of all, let us see how to originate roots. Okay, what are the sources, what are the origin points, its origin points. Let us see about the you can draw it. Seed, first of all, study the seed. Study the seed. You can draw. You can draw it in this way. We can see it. What is this? What is this? This one is the seed cotyledons, seed dicots, monocots. When the seed contains one cotyledons is monocot, and the seed coat when the contains two cotyledons, that is called dicot, the dicot seed. This one is the called seed coat. Seed coat. This one is the called seed coat, and this one is the called the cotyledons. Cotyledons. And this one is the called radicle. This one is the called radicle, and this is the plumule. Plumule simple, आप जरूर पढ़े होंगे इसको। प्लूम्यूल हो गया, सीड कोट हो गया, और cotyledons हो गया, रेडिकल्स हो गया। रेडिकल्स is the part which produce root system. ये ऐसा पार्ट है रेडिकल्स जो कि रूट सिस्टम को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो एक तरह से हम लोग जान गए कि रूट किससे डेवलप होता है। तो रेडिकल्स ऑफ द सीड which give rise to root system. So let us see what the root system. Root. Types of the roots. Taproot or primary root. Fibrous root, and next one is adventitious root. Taproot, fibrous root, and adventitious root. Taproot. Which one is called taproot?
taproot, we can see there the radicals which the develop primary roots. Primary roots, that means, let us see diagram in this way. Taproot the thickest, primary root, when the primary root the thickest and longest, and this one is the primary roots. This one is the primary roots. This is called primary root. Primary. This one is called secondary, and this one is the called tertiary root. Tertiary root. Okay, so this is called the tap root. Fibrous root. It is also developed from the radicals, but main primary roots become short-lived, and secondary roots branches long. Secondary root branches elongate here. In this way, secondary roots, tertiary roots. That means these roots is the fibrous roots developed from the radicals, but its main primary root becomes shortened. Primary root short-lived. Secondary root elongates. Tertiary roots just originate from that. This is the surface feeders, and this is the deep feeders. इसका रूट डीप फीडर, जैसे आपका बनियान ट्री, जैसे बनियान ट्री हुआ, मैंगो ट्री हुआ, लिप्टस ट्री हुआ, ये सब का डीप फीडर होता है, इसको डीप फीडर कहते हैं, डीप फीडर. ठीक. और दिस वन इज द adventitious fibrous root. So both are the example of the roots which are developed from the radicals. And third one is the adventitious root. The root which develop from any parts of the plants except radicals. कह सकते हैं कि roots develop from different other parts of the plant except what? Except radical. रेडिकल को छोड़ करके किसी भी पार्ट में, अगर रेडिकल को छोड़ करके किसी भी पार्ट से, स्टेम से, उसका रूट से, लीफ से, बर्ड से, कहीं से भी अगर कह सकते हैं कि रूट डेवलप होता है, तो दैट इज कॉल्ड एडवेंटिटियस रूट. एडवेंटिटियस रूट अंडरग्राउंड भी हो सकता है और अबव द ग्राउंड हो सकता है, तीनों केस में. तो लेट अस सी टुडे द स्ट्रक्चर ऑफ रूट. एक्चुअली रूट होता है क्या है, थोड़ा सा देखें हम लोग. A structure of root. A structure of roots. Listen the roots, and this one is the part where we can see. This one is the root hairs,
This one is the root hairs. We can see these regions. These regions is called root cap. This is called root cap. इसको क्या कहेंगे? रूट कैप या इसको कैलिप्ट्रा कहेंगे, कैलिप्ट्रा. And this one is called, this one region is what? This one region is merismatic regions. This one is the merismatic region. And this one part is called zone of elongation. Okay, and this part is called zone of root hairs. And this one is called zone of maturation. Let us see one by one. Root cap, calyptra, consists of the cells which were multicellulars, and just its main functions to penetrate the soil particles and move its outer layer peeled up, but constitutively new cells are formed, the meristematic cells, which provide the new cells to root caps. Ultimately, peeled shells replaced with the new cells. Then, subterminal, that means growth is subterminal. Root growth is subterminal. Let us understand it. And this one is called the zone of meristematic. The cells which are very thin, dense protoplasm and irregular in size, and divide continuously, divide and produce the new cells. It provides the new cells to root caps also, and this one is called zone of elongations. Cell become voluminous, becomes enlarged and increase in size, and that zone is called elongations. New cells start adding up in this regions. Okay, and the zone of root hairs, and there's just a cell differentiate, and cells unicellular roots, unicellular cells, and just ये endogenous होता है. रूट इज इंडोजीनस, अंदर से आउटग्रोथ के रूप में आता है. ये अंदर से जो रूट लेयर्स होते हैं, एपिब्लेमा, आउटर लेयर्स, एपिब्लेमा, when the cells, especially zone of maturation, cell differentiate into xylem and phloem, outer layer epiblema give rise to root hairs. Okay, root hairs play an important role in observation of water and minerals. Okay, water and minerals observation. Next one is the zone of maturations. Zone of maturations, cells completely differentiates, impermeable and just protective in nature. Okay, so these are the layers of the different types of the roots. Okay, different structures, different layers, root caps, meristematic zones, zone of elongations. Zone of elongations, cells becomes capable to observe the water and minerals. Root hairs observe the water and minerals from the soil particles. Okay, and just be carried to the xylem, and xylem transfer it to the leaves for the photosynthesis. जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो ये रहा आज का ये स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट क्या देखेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। कभी कभी रूट हम जानते हैं कि एंकरेज करता है, स्टोरेज करता है, कभी वाटर मिनरल्स तो करता है। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसा होता है कि रूट कुछ अलग काम करता है, जैसे रेस्पिरेशन का हुआ, सपोर्ट का हुआ, स्टोरेज का हुआ। जैसे हम लोग गाजर मूली खाते हैं तो ये भी एक स्टोरेज है फूड्स। तो व्हेन द रूट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस other than observation of the water and minerals, तो we can say the modification of the root। अब देखते हैं कि टैप रूट का देखें, पहले टैप रूट का मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट में हम लोग देखेंगे कि ये पहला जो आता है वो कोनिकल फॉर्म्स में आता है। कौन सा फॉर्म में आता है, कोनिकल फॉर्म्स। ये स्टोरेज है, स्टोरेज फॉर्म में आता है, स्टोरेज रूट के रूप में मॉडिफिकेशन होता है, और स्टोरेज रूट में कोनिकल आता है। कोनिकल में क्या होता है कि कोन शेप का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ऐसे। आप लोग जरूर इसको खाए होंगे। देखिए इस तरह का ये कोनिकल शेप, छोटे छोटे सेकेंडरी रूट्स इसे आपका निकले हुए रहते हैं। यहाँ से ये सेकेंडरी रूट्स, ये आपका रूट्स रेडिकल्स के हिस्सा है, यहाँ से ये निकला हुआ, ये बट्स हो गए। ये कोनिकल में एग्जांपल में क्या हो जाएगा, कैरोट, क्या हो जाएगा, कैरोट। दूसरा आता है एक तरह से ट्यूबरस फॉर्म, ट्यूबरस फॉर्म आता है। ट्यूबरस फॉर्म में क्या आ जाता है भाई, तो इरेगुलर इंसेप्ट्स ट्यूबर के फॉर्म में आ जाता है। इस तरह से ट्यूबर के फॉर्म में आपका आता है। देखिए इस तरह का ट्यूबर का फॉर्म में आपका आ जाता है, ये ट्यूबर का फॉर्म में आ जाता है। ये प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स है जगह, ये प्राइमरी रूट्स, ये क्या है, प्राइमरी रूट्स है, ये प्राइमरी रूट्स है। जैसे मिराबिलिस, कौन सा आता है, मिराबिलिस जलापा। 4 o'clock प्लांट, ये 4 o'clock प्लांट्स में। तीसरा जो होता है, तीसरा जो पार्ट होता है, वो तीसरा जो पार्ट हो जाता है वो होता है नैपी फॉर्म। नैपी फॉर्म ये स्टोरेज का ही, ये सब हम लोग खाते हैं तो स्टोरेज में ये लट्टू की तरह हो जाता है। देखिए ये लट्टू की तरह जरूर आप लोग खाए होंगे, बीट खाते हैं, सलजम टर्निप खाते हैं, एक ही टर्निप जैसा हो जाता है। और इसमें छोटा छोटा आप देखिएगा सेकेंडरी रूट्स, यानी ज्यादा से ज्यादा ये पार्ट हाइपोकोटाइल का पार्ट खाते हैं, हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल पार्ट खाते हैं हम ज्यादा से ज्यादा। और ये प्राइमरी रूट्स, ठीक। और ये सेकेंडरी रूट्स, तो ये नैपी फॉर्म्स होता है, एकाएक टैपरिंग हो जाता है। तो इस एग्जांपल में क्या हो जाएगा, टर्निप हो जाएगा, टर्निप। और दूसरा क्या हो जाएगा, बीट। ये सब एक तरह से स्टोरेज का है। दूसरा जो पार्ट आ जाता है हम लोग 4 में देखेंगे, फ्यूजिफॉर्म। देखिए फ्यूजिफॉर्म आता है, तो फ्यूजिफॉर्म में हम लोग देखते हैं क्या कि इस तरह का रूट आता है, ये दोनों तरफ से टैपरिंग आता है, ये थोड़ा सा टैपरिंग आता है। आप लोग देखे होंगे, इसको भी देखे होंगे, छोटा छोटा रेशा नुमा, ये सेकेंडरी रूट्स है, इसका ये सेकेंडरी रूट्स है। और यहीं से ये आपका निकला हुआ है। जैसे आप लोग रेडिस खाए हो, ये रेडिस मूली आता है, ये फ्यूजिफॉर्म का ही है। तो ये स्टोरेज के फॉर्म का हुआ। दूसरा हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्टोरेज के लिए, दूसरा स्टोरेज के
स्टोरेज के बाद आपका आ गया नोडुलेटेड रूट। नोडुलेटेड नोडुलेटेड रूट। नोडुलेटेड रूट में एक तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि इस तरह का रूट प्राइमरी रूट आता है, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट आता है, ये सेकेंडरी रूट आ जाता है, और सेकेंडरी से टर्शियरी रूट आ जाता है। तो इसमें ये टर्शियरी रूट आ जाएगा, ये टर्शियरी रूट आ गया, यहाँ से टर्शियरी रूट। अब क्या होता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं इस तरह का गोला गोला इस तरह का नजर आता है। देखिए इस तरह का गोला गोला नजर आता है। ये क्या है भाई, तो एक तरह का आपका गांठ बनते आता है, ये गांठ बनते आता है। तो इसमें जो आता है इसी को नोड्यूल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, नोड्यूल्स। और ये नोड्यूल्स में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। क्या चीज होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। आप लोग लोअर क्लास में ही पढ़े होंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये किसमें होता है, लेगुमिनस प्लांट में, लेगुमिनस प्लांट में देखने को मिलता है। लेगुमिनस प्लांट कौन सा होता है, एग्जांपल प्लांट, पी प्लांट, पी में देखने को मिलता है। ये नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, भाया अमोनिया में भी करता है, नाइट्राइट में भी करता है। इस तरह से ये आपका कन्वर्सन करता है, जो कि यूजेबल फॉर्म होता है, और रूट उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है जो नोड्यूल्स के रूप में आता है और उसको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी रूट। तीसरा रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी रूट में कुछ मार्सी एरियाज में, जो प्लांट मार्सी एरियाज होता है, मार्सी एरियाज में जहां की पानी लगा है, उसमें हम लोग देखते हैं क्या, देखिए हम लोग देखते हैं क्या, इस तरह का ये एक तरह से रूट, ये निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, निगेटिव जियोट्रॉपिक आता है। ये देखिए वाटर है, वाटर सीड है, इस तरह का। आप लोग लोअर क्लास में जरूर पढ़े होंगे इसको। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि इस तरह का पोर्स होते हैं, नेमाटोपोर्स। इसको लेंटिसेल्स कहेंगे, लेंटिसेल्स कह सकते हैं। देखिए हम लोग इसको लेंटिसेल्स कहेंगे, लेंटिसेल्स या निमैटोथोड्स। ठीक है ना, पूरे रूट्स को निमैटोपोर्स कह सकते हैं, निमैटोपोर्स। इस तरह का हम लोग कर सकते हैं मार्सी एरियाज में, मैंग्रोव प्लांट्स में देखने को ज्यादा ये मिलता है। तो आज हम लोग देखेंगे एडवेंटिडियस रूट के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन भी दबाइए, ताकि पता चले कि आने वाला वीडियो मेरा क्वेश्चन बेस्ड आपका टॉपिक, जो एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर का जरूर मिलेगा। तो उसको जरूर देखिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।